Hi, I am Syed Rashid, physics teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel named as Ahle High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 8th physics chemistry and our chapter number 8 combustion, fuel and flames. Now our today's topic is types of combustion. Let us begin. During summer time, dry grass catches fire in the forest. It may spread to the trees and very soon the whole forest will be on the fire. It is very difficult to control such forest fire. If the head of the match stick is rubbed on the side of the match box, it start burning. What make match stick to catch fire? A mixture of antimonies, trisulfate, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the matchstick made of suitable wood. When it is struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This starts the combustion of the matchstick. However, white phosphorus proves to be dangerous both for workers involving in the manufacturing of match boxes and for the uses. Now, in reader we have few examples with us. You might have seen in the summer time, okay, dry grass may catch fire and this fire can spread to trees, okay. After that soon it will spread to the whole forest and it is very difficult to control the fire catch by the trees. One more thing, we know that if the head of the matchstick is rubbed against the side of the match box, it start burning. वाह, बहुत इंग्लिश बोल लिया सर, थोड़ा हिंदी में समझा। देखिए, हम गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि कभी क्या होता है कि जो सूखी हुई घास है उसमें आँच पकड़ लेगी, ठीक है। आँच पकड़ लेने के बाद क्या होगा, झाड़ों तक जाएगी वो आँच, ट्रीज, फिर ट्रीज से होते होते फॉरेस्ट को भी यानी कि बर्न करती और उस टाइप के आँख को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दूसरी एग्जाम्पल है आपके कि जो माच स्टिक पे साइड पे जो रफ सरफेस रहती है उसके हम माच बॉक्स के जो माच स्टिक के हेड को उसके साथ रब करेंगे, घसेंगे तो आपको आँच हो जाती। तो ये क्यों होती, बोल रहा कि हमारे जो माच स्टिक के साइड में जो लगे हुआ रहता है कुछ केमिकल्स रहते हैं जिसका नाम है ट्राई सल्फेट एक है और एक है पोटेशियम क्लोरेट है और एक वाइट फॉस्फोरस, ग्लू एंड स्टार्च, ये 5 चीज़ों से वो मिलके बने हुआ रहता। तो जैसा ही हम माच स्टिक को रफ करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से जो फास्फोरस है वो इग्निट हो जाता, वाइट फास्फोरस, जिसकी वजह से फायर पकड़ लेती। मगर चूँकि वाइट फास्फोरस की अगर बात करेंगे हम तो वो बहुत डेंजर रहता फॉर दी मैन्युफैक्चर एंड वर्कर, जो लोग माच बॉक्स बनाते हैं या फिर वैसी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज रहती है उन लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस रहता, नीड टू टेक प्रिकॉशन। नाउअडेज द हेड ऑफ द सेफ्टी matchstick contains only anatomy trisulfate potassium chlorate. The rubbing surface has powdered grass and a little red phosphorus which is much lesser dangerous. When the matchstick is struck against the rubbing surfaces, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat of ignite anatopy ट्राई सल्फेट एंड स्टार्ट दी कम्बशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा कि जो माच स्टिक है आज के ज़माने में यानी कि हम इंस्टेड ऑफ वाइट फॉस्फोरस उसमें हम रेड कलर का फॉस्फोरस का यूज़ कर रहे हैं। जैसा ही हम उसको रेड यानी कि माच स्टिक को रब करेंगे तो वो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाइट फॉस्फोरस में और इमीडिएटली वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम क्लोरेट से। रिएक्ट करने के बाद क्या होता, इग्निट हो जाता, जिससे कम्बशन पॉसिबल है। The type of combustion in which material supply burn into flame without the application of any external agent is called spontaneous combustion. Turn on the knob of the gas stove in the kitchen and bring a burning matchstick or a gas lighter near it. The gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as a rapid combustion. Material such as split petrol and camphors burns even with a spark from a lighter gas. In combustion actually we have 3 types of combustion with us, okay. I will going to write here, okay. First we have like spontaneous combustion, okay. As you can see on the board I wrote spontaneous combustion, rapid combustion and slow combustion. Spontaneous combustion is nothing but
दिस कंबशन टेक प्लेस विदाउट एनी एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल लाइक फ्लेम्स, यानी हम उसको एक्सटर्नल फ्लेम नहीं दे रहे हैं, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उन्हें गर्म हो रहा, गर्म ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा गर्म कि वो इग्निशन टेम्परेचर को रीच कर रहा, रीच करते आँच पकड़ लेती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल हो सकता कि समर में जो ग्रास थी वो सिर्फ यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो ग्रास के अंदर इग्निशन टेम्परेचर आ गया, उसमें थोड़ा स्पार्क होता, पहले स्पार्क होते होते आँच लगना शुरू हो जाती और बहुत डेंजरस क्या रहते इसमें इंसिडेंट्स रहते, ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन के लिए कुछ एक्सटर्नल फ्लेम की मदद की ज़रूरत होती है, जैसा कि हम गैस स्टोव है उसको ऑन करके हम उसको यानी कि लाइटर से हम उसको हीट करेंगे, स्पार्क जैसा आएगा, वो फिर आँच फ्लेम पकड़ लेगा गैस स्टोव, या फिर हम माच स्टिक या फिर लाइटर से भी हम उसको गैस स्टोव को ऑन करने के बाद करीब लेके गए तो यानी कि कंबस्ट होना शुरू करता। तो इस टाइप के कंबशन को हम कहेंगे रैपिड कंबशन, ठीक है, यानी कि उसको एक्सटर्नल फ्लेम की नीड है यानी कि ज़रूरत है, ये रैपिड कंडक्शन रहता, रैपिड कंबशन रहता। वन मोर थिंग याद रहे कि कुछ चीज़ें हाई इनफ्लेमेबल रहते और इस टाइप के थिंग्स को हम क्या करना पड़ेगा, बहुत ही टेकिंग केयर करना पड़ेगा। जैसे हमारा पेट्रोल है, गैस है, केरोसिन है, ये इनफ्लेमेबल रहते हैं, यानी कि अगर इसके ज़र्रा भी एक स्पार्क भी मिल गया अगर इनको तो एक साथ आँच लग जाती। तो मेक श्योर कि इस टाइप के चीज़ों को रोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, यानी कि इसका मेन दो चीज़ें रहते हैं, स्टोरिंग अच्छे से करना है और यूज़ करते खुद ध्यान से प्रिकॉशन से यूज़ करना है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम जब कुछ ऐसे भी फायर्स रहते हैं जिससे आपको साउंड आता, ठीक है, और वो यूजुअली दिवाली में हम क्रैकर्स के रूप में जलाते हैं बहुत सारे लोग। तो जैसा कि एक हमारे पास बम है, उसको लगाते ही क्या होता, उसके हीट भी आती है अपने को, लाइट भी आती है और ख़तरनाक साउंड आता, ठीक है, उसमें अपने को हीट रहेगी, लाइट रहेगी और एक बहुत ख़तरनाक साउंड रहता है। तो ये तीन चीज़ें भी हमको मिलते। तो जो यानी कि आँच को पकड़ के जो बंद होते या फिर फट जाते, उस टाइप के थिंग्स को हम बोलेंगे एक्सप्लोजिव मटेरियल, ठीक है, XPLOSIVE, एक्सप्लोजिव मटेरियल। ये एक्सप्लोजिव मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा आपको यानी कि कॉशन रखना पड़ता है, उसको स्टोर करने के लिए, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर इसमें कुछ भी अगर इंसिडेंस या हादसा हो रहा तो बहुत सारे हमको रेवेन्यू लॉस होगा और ह्यूमन लाइफ का भी लॉस हो सकता, यानी कि बहुत सारा जान का नुकसान हो सकता और मनी पैसों का भी नुकसान हो सकता। तो इस टाइप की चीज़ों को हमको ध्यान से कैरी करना होगा। तो वी हैव लर्न लाइक स्पॉन्टेनियस एंड रैपिड कंबशन। आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन स्लो कंबशन इन नेक्स्ट, यानी कि अभी कर रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट है, इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट द फ्यूल्स, ओके, हमने फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे भी एक छोटी सी टॉपिक है हमारे पास फ्यूल्स को लेके, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारे पास कंबशन, फ्यूल एंड फ्लेम। तो कंबशन के बारे में तो बहुत सारा हम पढ़ रहे हैं। फ्यूल के बारे में हमको क्या दिया गया, देखिए, वी नो दैट द कंबशन गिव हीट एंड लाइट। The source of heat for domestic automobiles and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, LPG, CNG, etc. These substances are fuels. In previous chapter, we study about the fossil fuels and their uses in various ways. We not only use fossil fuel but also other kinds of fuels for different purposes at home. In automobiles and in industries, जैसा कि आपको मैं अभी बताया था कि प्रीवियस चैप्टर में हमने फ्यूल के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी वही आपको बताया जा रहा कि हमारा जो प्रीवियस चैप्टर थे हमने उस फ्यूल के बारे में, बहुत सारे फ्यूल्स के बारे में वहाँ हमने स्टडी किया था, लर्न किया था। उसमें से हमारे पास फ्यूल्स है, LPG है, ठीक है, पेट्रोल है, साथ ही साथ हमारे पास कोल है। कोल इज़ वन ऑफ दी लाइक एंसेंट फ्यूल था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है। उसके साथ साथ वुड है हमारे पास, वुड के साथ आप कह सकते हैं आप केरोसिन। नाउअडेज वी आर जस्ट लेस यूजिंग ऑफ केरोसिन, केरोसिन अभी तो लेस यूज हो रहा, एक्सेट्रा, एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी। तो अब यहाँ पे ये बताना चाह रहा, ये जो फ्यूल्स होते हैं ये इसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं और हम बहुत सारे हमारे घरेलू यूज़ में और दूसरे इंडस्ट्रियल यूजेस में रहते हैं और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट के भी उसमें रहते हैं। तो आपको एक बॉक्स बनाना है यहाँ पे, ठीक है, आप होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ दी बोर्ड। बॉक्स में आपको क्या लिखना है, एक आपको लिखना है डोमेस्टिक पर्पस, ओके। तो यहाँ पे डोमेस्टिक PURPOSC, होप यू कैन सी, थोड़ा सा ग्रीन मार्कर है, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आपको। तो एक डोमेस्टिक
पर्पस रहेगा एक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, TRANSPORTATION, ओके, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस रहता है, और एक हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस रहता है। तो ये 3 पर्पसेस हमारे पास क्या है, यानी कि यूजेस है ये फ्यूल के। तो अब आप क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स जैसा बनाइए इसका। बनाने के बाद आप लिखिए कि डोमेस्टिक में हम क्या यूज़ आता हमारे फ्यूल्स, कौन सा फ्यूल यूज़ होता, और ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज़ आता, कौन सा फ्यूल यूज़ होता। तो आपको तो मालूम है डोमेस्टिक में हमको यूजुअली हम फ्यूल कहाँ यूज़ करेंगे, मेनली सिर्फ और सिर्फ कुकिंग के लिए ही हमको फ्यूल का इस्तेमाल होता है डोमेस्टिक पर्पस में। वेयर एज बास केसेस में कुछ और चीज़ों पे भी यूज़ करेंगे हम, जैसा अगर करंट चला गया, जनरेटर से हमको इलेक्ट्रिसिटी होना है, तभी भी हम डीजल डाल के हम जनरेटर चलाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्यूल यूज़ होगा इस तरीके से। ट्रांसपोर्टेशन में मेन फ्यूल का यूज़ होता है कि हमको ऑटोमोबाइल्स के अंदर उसको इंसर्ट करना है। इंडस्ट्रियल पर्पस में फ्यूल का यूज़ होता सेम जैसा मैं अभी बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी गई तो वहाँ पे डीजल डाल के जनरेटर ऑन करेंगे, साथ ही साथ कुछ फ्यूल ऑयल्स रहते जो मशीनों में डाल के उसको चलाना पड़ता है। तो ये आप एक यानी कि बॉक्स जैसा बना के पूरे यानी कि डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री में कौन सा फ्यूल यूज़ होता और क्या एक्सपेक्ट पे यूज़ होता बना लेना है आपको, ओके। अभी आज की क्लास में आप क्या कीजिए, टाइप्स ऑफ कंबशन नोट्स में लिखिए टाइप्स ऑफ कंबशन। लिखने के बाद आपको लिखना है वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन, यहाँ पे मैं पूरा वर्ड ही लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा यानी कि सहूलत हो जाए, इट विल रियली लाइक फैसिलिटेड टू यू, ठीक है। ये आप कंबशंस बोल के 3 टाइप के कंबशन आपने लिख लिया, ठीक है। रैपिड कंबशन के बारे में, जैसा स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में मैं बोला था, नो नीड एनी एक्सटर्नल फ्लेम, यानी एक्सटर्नल फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, इट विल टेक प्लेस बाई इट्स ओन व्हेन इट्स रीच टू इग्निशियन टेम्परेचर। अगर ये इग्निशियन टेम्परेचर को रीच कर लिया तो खुद ब खुद जलना शुरू होता। सेकेंड है रैपिड कंबशन में हमको क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंट सपोर्टेड चाहिए थोड़ा सा। स्लो कंबशन के बारे में हम थोड़ी देर में ही पढ़ने वाले हैं, ओके। इसके बाद फ्यूल के बारे में तो जैसा प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़े थे, फ्यूल्स बोल के आप एक साइड हेडिंग डाल के ये फ्यूल्स के नाम लिख के ये बॉक्स उतार के आप आगे की नोट्स उतना लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है और एक बॉक्स बनाइए आप इसके नीचे ही, ठीक है। वो बॉक्स को कैटेगराइज क्या करना है, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप ऐसा SOLID सॉलिड, ओके। उसके बाद LIQUID लिक्विड एंड गैस। इसमें से सॉलिड कौन सा फ्यूल है, लिक्विड कौन सा है, गैस कौन सा है, लिख लेना आप। यहाँ पे आपको पता है पेट्रोल एंड केरोसिन प्योरली लिक्विड में आएंगे, LPG गैस में। ये लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आए, गैस LPG एक गैस में आएगा। वेरा सॉलिड में हमारे पास क्या है, वुड है और कोल है। लिक्विड में हमारे पास क्या है, पेट्रोल है, केरोसिन है। तो ये लिक्विड फ्यूल्स है। तो ये वन ऑफ दी टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू योर रीडर आपको करना है। अब कुछ और बातें मैं आपको फ्यूल्स से रिलेटेड बताना चाहूँगा। अगर हमको एक फ्यूल सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है तो हमको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है या ध्यान रखना है। तो देखिए, जब भी हम फ्यूल को परचेस करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो फ्यूल की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि कितना चलेगा वो। फिर दूसरे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई थिंक फर्स्ट यू नीड टू कॉपी द रफली। अगर आप कुछ बोर्ड पे का कॉपी करना है तो कर सकते, और ये इसको रफ करके मैं आगे समझाऊंगा, ओके। होप यू हैव कॉपीड द थिंग। आपने थोड़ा रफ कॉपी कर लिया होगा, वो कॉपी करके रखिए। मेंटेन नोट्स, नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू आर इन 8th क्लास, यू आर लर्निंग फिजिक्स फर्स्ट टाइम, you need to browse the reader and you need to maintain the notes, you need to listen the lecture, you need to ask the doubt in online class। 4 चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। READER रीडर यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक फॉलो करते रहिए आप, ठीक है। नोट्स मेंटेन करते रहिए अच्छे से। फिर आपको जो लेक्चर है जो मैं आपको दे रहा हूँ अच्छा सुनिए। और 4th चीज़, ऑनलाइन क्लास जब भी हमारी होती, डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये चीज़ें करिए, आप ना फर्स्ट टाइम पढ़ रहे फिजिक्स, आपको अच्छे से अच्छा याद रहता। तो देखिए, जब भी हम फ्यूल को फेच कर रहे हैं यानी कि सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या क्या देखना पड़ेगा उसका। नंबर 1 एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट कितना दम है इसके अंदर। अपन बोलते हैं ना कितना दम है रे तेरे अंदर बोल के कभी मस्खरेपने में लोकल लैंग्वेज में। दैट मीन्स ये कितना इफेक्टिव है और कितना रन हो सकता या कितना चल सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी अवेलेबिलिटी, यानी कि इन्हें हमारे ज़मीन में यानी कि कितना अवेलेबल है अभी,
यानी कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे या फिर अर्थ में कितना अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे रीजनेबल प्राइस, यानी कि जो प्राइस है उसका रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम और क्या देखेंगे फैक्टर्स इसके अंदर, और इजीली जो कैरी होता है ना वो कैरी इजी होना चाहिए। फिफ्थ हम देखेंगे स्टोर भी क्या होना चाहिए यानी इजीली। तो ये पूरे चीज़ें हमको देखना पड़ेगा एक यानी कि फ्यूल को सेलेक्ट करना है तो। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि यानी कि इसका जो फ्लेम है यानी कि 6th पॉइंट पे हम देखना पड़ेगा इजी उन्हें क्या होना पड़ता, पुट ऑन होना, यानी कि जलना भी आसानी से। और 7वां हम देखेंगे इजीली क्या होना उन्हें पुट ऑफ होना, यानी कि जलना भी जल्दी और बंद भी जल्दी हो जैसा। तो ये फैक्टर्स हैं। एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी 8th पॉइंट में आप लिख सकते हैं एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी। ये हमको एक फ्यूल सेलेक्ट करने के लिए ये फैक्टर्स को हमको यानी कि ध्यान में रखना है। वी नीड टू नो द फैक्टर्स रिलेटेड टू दिस। तो अभी आपको साइड हेडिंग डालना है फ्यूल, दैट इज सिलेक्शन ऑफ फ्यूल बोल के डालिए आप। यहाँ पे साइड हेडिंग क्या डालते हैं, SELECTION सिलेक्शन ऑफ फ्यूल। सिलेक्शन ऑफ फ्यूल डाल के आप लिखिए इफ़ वी वांट टू सेलेक्ट फ्यूल वी नीड टू सी फ्यू पॉइंट्स विथ अस, यानी कि कुछ पॉइंट्स हमको देखने हैं। वो पॉइंट्स क्या है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, रीजनेबल प्राइस, कैरी इजी, स्टोर इजी, इजीली पुट ऑफ, इजीली पुट ऑन एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ें हमको देखना है फ्यूल को सेलेक्ट यानी कि लेने से पहले। एक अब हमारे 8th क्लास में एक बहुत अच्छा नया वर्ड आ रहा, कैलोरी नाम है इसका। क्या है नाम, CALO, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरीज किसको बोलते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देते हुए मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले मैं रीड कर लूँगा, आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ रीड करते हुए, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये नोट्स में लिखने के बाद फौरी बाद में जो मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ वो लिख लेना है नोट्स में, ओके। एज यू आर सीइंग ऑन स्क्रीन दैट व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, सो यू गॉट द थियरी पार्ट लाइक सपोज 1 kg of coal and 1 kg of cow dung are burned, which one produce more heat? Different substance produce different amount of heat on burning. Heat is measured in kilojoules. Calorific value of a fuel is the amount of heat energy produced on completing combustion of 1 kg of fuel. It is measured in kilojoules per kg. Do you know? जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूवर्स कि अगर 1 kg कोल है और 1 kg आपका काउडंग है, उसको हम जलाएंगे, जो उसकी हीट प्रोड्यूस होती तो अलग रहती, 1 kg कोल की अलग रहती है और 1 kg काउडंग की अलग रहती है। तो हीट क्या है मेज़र करते किलो जूल्स में, और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है फ्यूल की, जो अमाउंट ऑफ हीट है ना प्रोड्यूस होती एक कंप्लीट कंबशन यानी 1 किलो कंप्लीट जलने से जो होता उसको हम बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं, डू यू नो में अगर काउडंग अगर 1 kg अगर बर्न करेंगे हम तो 6000 से 8000 तक किलो जोल पर केजी होता। वैसे वुड की 17000 से 22,000 तक होगा, कोल का 25,000 से 33,000 तक रहेगा, पेट्रोल का 45,000, ओके, केरोसिन का 45,000, डीजल का 45,000, CNG का 50,000, LPG का 55,000, बायोगैस का 35,000 से 40,000 रहता है। वेरास अगर हाइड्रोजन यानी कि 1 किलो हाइड्रोजन को हम कंबस्ट करेंगे या फिर जलाएंगे तो ये पूरा यानी कि 1,50,000 तक हो सकती है, यानी कि पूरा 1.5 लाख किलो कैलोरी तक उन्हें हो सकता है। जैसा आप ये टेबल और थ्योरी पार्ट आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेक श्योर यू नीड टू कॉपी, आपको ये कॉपी करना है। अब ज़रा मेरी तरफ देखो, नेक्स्ट हमारी टॉपिक है फायर को कंट्रोल कैसे किया जाए। मगर उससे पहले मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। अभी मैं कंबशन के बारे में आपको स्पॉन्टेनियस और रैपिड कंबशन के बारे में तो बता दिया था, स्लो कंबशन खाली लिखा था, बताया नहीं था। तो इस पार्ट में मैं आपको स्लो कंबशन के बारे में बोलता हुआ आगे बढ़ूँ। देखिए, जो आपका वुड है या फिर कोल है, उसको आंच लगाए बाद थोड़ी देर के बाद आंच लगती, जो स्लो आंच लगती, उस टाइप के हम कंबशन को स्लो कंबशन कहते हैं। ओके, नाउ फायर को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अब आप बोलेंगे फायर को कंट्रोल करने के हमारे पास You must have seen or heard about the fire breaking out in house, shop, factories, etc. How can you put off
the fire if it breaks out. We use many methods to extinguish a fire, but there all follows one principle, which is the principle of eliminating some factor which support the combustion. Let us recall the factors which support the combustion. तो देखिए अब यहाँ पे आप सुने होंगे कि कहीं सारे घरों में या फिर शॉप्स या फिर फैक्ट्रीज में आँच लगती, तो ये जो आँच जो ख़त्म करना है, ब्रेकआउट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि कई सारे फ्यूल के एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं। जैसा कि अब एक ह्यूमन इंसान को आँच लग गई तो उसको क्या करते हैं, सब में पहले पानी डाल के आँच बुझाने की सोचते, या फिर उसको ब्लैंकेट में फोल्ड कर देते वो इंसान को, या फिर आप एक्सटिंग्विशर लेके आके उस गैस वगैरह रहते जो फायर को पुट ऑफ करते हैं, यानी फायर को ख़त्म करने वाले गैस उसके ह्यूमन के ऊपर मारने पे आँच ख़त्म होती। लेकिन ये सब एक ही प्रिंसिपल पे काम करते। प्रिंसिपल क्या है वो, एलिमिनेशन ऑफ फैक्टर विच सपोर्ट द कंबशन, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ फैक्टर विच सपोर्ट कंबशन, यानी कंबशन को जो फैक्टर सपोर्ट करता है उसको एलिमिनेट करना है। कंबशन को 3 चीज़ें सपोर्ट करते। सब में पहले क्या है, यानी कि कंबस्टिंग मटेरियल, यानी कि कोई मटेरियल रहता जो कंबस्टेबल रहता, वो मटेरियल की बगैर कंबशन पॉसिबल नहीं था, यानी कंबस्टेबल मटेरियल रहता एक, और दूसरा एयर और ऑक्सीजन सप्लाई, एयर या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई। एयर मीन्स मेनली ऑक्सीजन ही रहेगा, उसमें थर्ड पार्ट क्या रहेगा, इग्निशन टेम्परेचर। आपको एग्जाम में पूछ सकता लाइक व्हाट आर द फैक्टर फ्रॉम विच कंबशन पॉसिबल, यानी क्या फैक्टर्स है जिससे आपको कंबशन पॉसिबल है। कंबशन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, कंबस्टेबल मटेरियल चाहिए, एक एयर और ऑक्सीजन, और थर्ड आपको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। तो अगर कहीं पे आँच लग गई, समझो फुल भयानक आँच लगी, तो जैसा कि अब एक लकड़ी है, लकड़ी जल रही, तो 3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो लकड़ी है, खुद कंबस्टेबल मटेरियल है वो, एक एयर सप्लाई हो रही यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई हो रही इसको, और एक है आपको इग्निशन टेम्परेचर यानी वो गर्म हो रहा। तो ये तीनों में से एक चीज़ को करेंगे हम। तो सिंपली क्या करेंगे हम, याद रखिए कभी भी घरों में या फिर स्कूल्स में आँच लगती है तो सब में पहले क्या करते हैं वो लोग, जाके इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देंगे, ऑफ करके पानी मारेंगे। नहीं तो आपको तो पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नहीं करके डायरेक्ट पानी मारेंगे तो पानी के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी आके खुद जल जाते हैं, खुद शॉर्ट लग के उनको खुद डैमेज हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके पानी मारते। जब हम वाटर स्प्रे करते तो वाटर स्प्रे करने में 2 चीज़ें होते हैं ऑल द स्टूडेंट यहाँ पे। एक तो उसकी एयर सप्लाई ब्लॉक होती, क्योंकि पानी एक साथ मारें तो एयर सप्लाई नहीं हो सकती। दूसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर कूल हो जाता। वेरस कंबस्टिंग मटेरियल तो उसका जैसे का वैसा रहता, लेकिन जो प्रेशर से जो पानी पड़ता उन्हें ऑक्सीजन को और एयर को प्रिवेंट करता वो कंबस्टिंग मटेरियल से टच करने पे, और दूसरा इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है ना, इग्निशन टेम्परेचर ख़त्म करता। तो उसकी वजह से क्या होता, आँच बुझ जाती। तो ये पानी का। नेक्स्ट है, कुछ जगहों पे हमको पानी का मारना पॉसिबल नहीं रहता, जैसा कि कोई ऑयल इंडस्ट्री है या फिर वनस्पति है, अगर वहाँ पे आँच लग गई, अगर आप पानी मारेंगे तो जो ऑयल रहता है वाटर के ऊपर फ्लोट करता, ऊपर फ्लोट करके पानी के ऊपर भी आँच लगे जैसा दिखता हम लोग। तो वैसे केसेस में कुछ गैसेस वगैरह का इस्तेमाल करते जिससे आपको फायर यानी कि पुट ऑफ हो जाए। तो फायर कंट्रोल करने के लिए मेन हमको क्या करना चाहिए, 1 ऑफ द 3 फैक्टर्स को फेल कर देना, या तो उसकी एयर सप्लाई को रोक दो, या इग्निशन टेम्परेचर को बंद करो, या फिर कंबस्टेबल मटेरियल को क्या करो, ख़त्म कर दो। तो जो हम ह्यूमन को जब आँच लगती, ठीक है, तो आँच जो पकड़ती इंसान को मेनली स्किन थोड़ा स्किन के अंदर ऑयली रहता उसमें पकड़ती। तो जब ब्लैंकेट को लपट दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता देखिए, मेनली कंबस्टेबल जो मटेरियल है उसका वो ख़त्म करेंगे। अगर ब्लैंकेट लपटे तो क्या एयर सप्लाई रुकता, एयर सप्लाई तो नहीं हाँ एयर सप्लाई पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा ब्लैंकेट को यानी कि वो करने पे, लेकिन जो कंबस्टेबल मटेरियल स्किन था उसको दबा दे रहे हैं हम, उसको कंबस्ट होने नहीं दे रहे। तो उस तरीके से ये फायर को कंट्रोल किया जाता है। मेनली हमको फायर को कंट्रोल करने के लिए ये 3 चीज़ों में से एक करना पड़ेगा। बट एज ऑफ इन 8th रीडर यानी कि जैसा कि हम 8th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें फायर कंट्रोल को लेके 1 पेज की कंप्लीट थ्योरी पार्ट दिया है। तो वो थ्योरी पार्ट मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आपको चाहिए कि वो पार्ट यानी कि याद रखें और उसमें से पॉइंट्स बना के लिखिए अपना। ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी पार्ट, अगर आप पूरा थ्योरी पार्ट लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, आपके नोटबुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें से पॉइंट्स बना के लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ द टाइम टू सी अबाउट द फायर कंट्रोल्स इन डिटेल ऑन योर स्क्रीन।
Hope you have saw the theory part related to the fire control. Okay. Now we will going to continue our this chapter in our next session or next part. That's all about our today's session or today's class. Till then, maintain notes, take care, have a great time. This is Syed Rashid. You are watching Ahmedabad High School and Junior College YouTube channel. Thank you.